environment is the precious gift providing us with clean air, water and resources. But it's currently threatened by pollution and deforestation. Presentation. So, shall we start now? Have a better future by protecting your mother nature. Good morning to respected teachers, parents and all my dear friends. Present over here, I am of the Yadav of class 5th. That is going to tell you about what is environment. Environment is the place, people, things and nature that surround any living organism. It is a combination of natural and human-made resources. मत फैलाओ अब प्रदूषण, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण, पर्यावरण का करो संरक्षण. Now I invite my friend Arush. Thank you. My topic is components of environment. It has three components: natural, man-made, human. Good morning everyone. My name is Prachi Valmiki. I study class 5th. My topic: natural components. The natural surrounding, for example, air, water, land, living things. Good morning all of you. My name is Sonal Kanodia. I study in class 5th. Today's my topic is man-made components. It includes all things made by human beings, for example, buildings, parks, bridges, roads, monuments, industries. Good morning everyone. My name is Saurav Kumar. I study in class 5th. My topic is human component. Human includes human relate, values and beliefs, for example, individual, family, community, religion, education. The word of living organisms or all the living things, for example, plants, animals, fungi, bacteria, people. Now I invite my friend Shiva. Thank you. Good morning everyone. My name is Shiva Verma. I study in class 5th. My topic is abiotic, the words of non-living elements, for example, rocks, water, air, sunlight, wind, land, soil. Now I invite my friend Shivani. Thank you. Morning everyone. My name is Shivani Chauhan. I study in class 5th. My topic is domains of environment. Domains or different layers of the environment includes. Good morning all of you. My name is Suryansh Kumar. I study in class 5th. My topic is lithosphere, the solid crust of the heart of layer of the earth. It is made up of rocks, minerals and covered by the thin layer of soil. I study in class 5th. My topic. Good morning all of you. My name is Ananya Valmiki. I study in class 5th. My topic is ecosystem. An ecosystem is a geographic area where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. Now I invite my friend Sanya. Thank you. Good morning all of you. My name is Sanya Kashyap. I study in class 5th. Today's my topic is ecosystem. Ecosystem contain biotic or living parts as well as abiotic factors or non-living parts. Biotic factors include plants, animals and other organisms. Good morning everyone. My name is Maisi. I am studying class 5th. My topic is human environment. Human environment is the interaction between human being and the environment. It is the relationship of people with the natural and physical environment around them. Now I invite my friend Raj. Thank you. Environment includes physical, biological, cultural, social and economic factors of the area. Thank you. Now I invite my friend Ansim. Good morning all of you. As in all areas of the world, there is a need for effective management of East Africa natural resources. Good morning all of you. My name is Anvaska. I study in class 5th. However, the population is rapidly increasing, nearing 240 million in Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda and Burundi alone. Meanwhile, more people are moving into urban areas. Now invite my friends. कैसे भी प्रोग्राम को ज्वाइन किया. इनके पेरेंट को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इस कंडीशन में भी बच्चे को हम तक पहुँचाया, हमारी मदद की. थैंक यू. पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. समझ रहे हो क्या कहती है गिर गिर उठ उठ तरल तरंग. भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग.
धरती कहती है धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मानव प्रकृति से कहता है हम दोनों का एक संबंध है, गहरा संबंध, कि अगर हम हैं तो ये प्रकृति है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की सुरक्षा करें। और इसी तरह से ये प्रकृति है तभी हम सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर ये स्वच्छ हवा नहीं होगी, ये स्वच्छ जल नहीं होगा, ये वायु, ये प्रकाश, ये आसमान में भी सोच समझ के लेना पड़ेगा। हमें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ जाना पड़ेगा, हमें पानी को सोच सोच के खर्च करना पड़ेगा। तो हमारा मैसेज है आप तक इन बच्चों के थ्रू कि एनवायरनमेंट को सेव करें, उसे सुरक्षित रखें और अपना जो भी योगदान हो सकता है उसमें दें। बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। अंधेरों से हम घेरे हुए हैं, अंधेरों से हम भागे हुए हैं, अंधेरों से हम घेरे हुए हैं, अंधेरों से हम भागे हुए हैं। पल पल हर पल हम जिए इतने काले हुए हैं। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम हैं तो तुम हो तो हम हैं, इंसान हो तुम, प्रकृति हम हैं। हम हैं तो तुम हो तो हम हैं, इंसान हो तुम, प्रकृति हम हैं। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें लगने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें लगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यहीं रहेंगे, 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 हम यहीं रहेंगे। कुछ लोग मेरे गांव में अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठ गए उसकी छांव में। अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठ गए उसकी छांव में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज पुष्पा यादव। आई एम क्लास टीचर ऑफ क्लास 4. Today difficulties that we are facing because of pollution.
Pollution is one of the biggest challenges in today's scenario. It causes serious problems about human health. It pollutes the air, causing difficulties in breathing. Activities such industrialization and urbanization are main reason of pollution. This problem is not only in air but is also widely spread in water and soil. Problem that is become to factories, cars, etc. etc. Due to water pollution, our Mother Earth is facing water scarcity and high level, and it also causes problem to marine creatures. So I would like to request all of you to please do not litter around. Use cloth bags, save water, plant more trees and save out Mother Earth. वर्ण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया, करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित, बढ़ गया प्रदूषण इतना, सांसें लेना हुआ है मुश्किल। रूठ गई प्रकृति हमसे, रूठ गई प्रकृति हमसे, मिलकर चलो मनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Prevent air pollution without revolution. Good morning to respected teachers, parents and all my dear friends present over here. Today I am Ananya Chaudhary of class 4. I am going to tell about pollution. In today's time, pollution is such a big and dangerous problem. Pollution is the introduction of harmful material into the environment. These harmful materials are called pollutant. Pollutant can be natural, such as Valgonia. Thank you. Now I invite my friend Abdul Samad. Good morning all of you. My name is Abdul Samad Khan. I study in class 4. Today my topic is pollution by human activities. Now I invite my friend. My name is Afreen. I study in class 4. My topic is air pollution, such as trash or runoff produced by factories damage the quality of air, water and land. Air pollution. Air pollution is a contamination indoor or outdoor environment by any chemical and physical and biological agent that modifies the natural characteristics of the atmosphere. Household combustion devices, motor vehicles, industrial facilities. Good morning everyone. My topic is air pollution. Noise pollution is considered to be any unwanted or disturbance of human and other organisms. Sound is rather invisible. Thank you. Now पेड़ लगाना पड़ता है, सब हरा भरा बनाने को पेड़ लगाना पड़ता है। बेमौसम आंधी पानी, गर्मी ठंडी और बरखा भी। बेमौसम आंधी पानी, गर्मी ठंडी और बरखा भी मौसम वक्त से लाने को पेड़ लगाना पड़ता है। हो रही दिक्कत सांस की जहर भरी हवाओं में, साफ हवा बहाने को पेड़ लगाना पड़ता है। हाँ जी, उथल पुथल सब हो गया, गर्मी जमी की बढ़ गई। उथल पुथल सब हो गया, गर्मी जमी की बढ़ गई, आबो हवा ठंडाने को पेड़ लगाना पड़ता है। हाँ जी, पेड़ लगाना पड़ता है। और कंक्रीटों के जंगल में घूमने विकास जाए, विकास हमारी प्रोग्रेस, हमारा डेवलपमेंट। कंक्रीटों के जंगल में घूमने विकास किधर जाए, जंगलों में घूमने जाने को भी पेड़ लगाना
पड़ता है, तो एक ही सलूशन है कि हमें पेड़ लगाना पड़ता है, और पेड़ लगाएंगे तभी हम खुली हवा में, शुद्ध हवा में सांस ले पाएंगे। अब पिछले ही संडे को आया था, थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में खेलने जाना। चलो अभी अंदर। अजीब सा लगा सुनकर, हम 2025 में नहीं 2035 में जी रहे हैं। जिस हिसाब से आप नेचर को डेंजर में डाल रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, 10 साल बाद हमारी जिंदगी ऐसी होने वाली है। हम बच्चों के खेलने में मम्मी पापा की परमिशन नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। उससे पूरा तो करना है मुझे, कब्र पर मेरे सर उठा खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। कुछ मांगना होगी नहीं, इतना मेरा काफी है, जिंदा खुदा ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ। मैच धोने जाते हैं, सिर्फ तन धोकर आते हैं। भूले चूके ही सही, हम अपनी गंगा को यूं ही मैला करते जाते हैं। तो हम बिना सिलेंडर्स के उन्हें बाहर नहीं भेज सकते, बिना ऑक्सीजन के वो एक पल सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस मुद्दे की गंभीरता आपने समझी होगी कि खेलना, जीना, नॉर्मल लाइफ जीना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि अगर हमने प्रदूषण पर अभी भी काम नहीं किया, अगर अभी भी हमने सहयोग नहीं किया। Good morning everyone. My name is Ayush Shukla, studying class 4th. My topic is soil pollution. Soil pollution refers to the contamination of soil with almost concentrations to toxic substance. Good morning all of you. My name is Pallavi. My topic is soil pollution. It is a serious environmental concern since it harbors many health hazards. For example, exposed to soil containing high concentrations of benzene increases the risk of contracting leukemia. Water pollution is the contamination of source by substances which make the water unusable for drinking, cooking, cleaning, swimming and other activities. Chest pain, congestion, salt, inflammation,
cardiovascular disease. Respiratory diseases are some of the diseases that can be caused by water pollution. Water pollution occurs due to contamination of water and may pose skin-related problems including skin irritation and rashes. एक पेड़ हम सबको उगाना चाहिए, लेकिन मैं एक कविता के माध्यम से आपको सचेत कर रही हूँ कि आओ मिलकर ये कसम खाएं, आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं पॉल्यूशन के बारे में, इतने सारे मैटर्स हमने नाटक के उससे और स्केट बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई थी। आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं, संदेश हम सब तक पहुंचाएं, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाएं। मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण को बहुत प्रदूषित किया है, तो गंदगी को पाएं, प्रदूषण को और न बढ़ने पाएं। गंदगी को हम दूर भगाएं, प्रदूषण को हम और नहीं पाएं। हम सभी, मैं भी, आप भी, सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, प्रदूषण पर हम रोक लगाएं। आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। थैंक यू सो मच। लिमिटेड है तो हम उसको बुद्धिमत्ता के साथ यूज करें, उसको अपनी इंटेलेक्चुअल पावर का यूज करते हुए यूज करें, उसे वेस्ट ना करें और हम नए पेड़ लगा के इस एनवायरनमेंट को और सुरक्षित बनाएं आने वाले भविष्य के लिए। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। हमसे नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये तेरा मेरा पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। ड्रिप ड्रैप ड्रिपरी ड्रैप, ड्रिप ड्रैप ड्रिपरी ड्रैप, ड्रिप ड्रैप ड्रिपरी ड्रैप, ड्रिप ड्रैप ड्रिपरी ड्रैप। चलो बदल दे धरोहर पुरानी, बचा ले निशानी हम। चलो बदल दे कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। स्वच्छता और पानी
जानिए ये जिंदगानी। ये जो एक सोशल मैटर हो, जो हम मैसेज दे सके। हमारा काम सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, हम आपको एक ऐसा मैसेज दें जो इस समाज के लिए, इस संस्था के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना ना हो कि देखिए हमने आपके बच्चे को इतना कैपेबल बना दिया कि वो स्टेज पे खड़ा होकर परफॉर्म कर सकता है। नहीं, हमें आपको ये बताना होता है कि हमने उसकी सोच को इतना डेवलप किया है कि वो हर एक मुद्दे पे, हर एक इश्यूज पे, हर एक सब्जेक्ट पे सोचता है। उसकी सोच को हमने इतना वाइड किया है कि वो हर चीज पे काम करता है। उसे पता है कि हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्या सोशल इश्यूज हैं जिन पे हमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं। और ऐसा ही हर एक प्रोग्राम में एक मैसेज था जो बच्चों ने आप तक कन्वे किया। हम उन्हें देखते हैं कि जब वो शुरुआत करते हैं तो एक एक लाइन्स जब बोलते हैं तो स्टार्टिंग में उन्हें भी प्रेशर होता है कि हमें प्रेजेंटेशन का मैटर तैयार करना है, पर जब वो सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, जब उसे वो लर्न करते हैं, उसे समझ के बोलते हैं तो उसका मीनिंग समझते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, उसकी गहराई में उतरते हैं। और जब बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो रट के आपके सामने कोई वर्ड्स नहीं बोल रहे होते, कोई लाइंस नहीं बोल रहे होते, वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ रहे होते हैं। और यही हमें बच्चों को सिखाना है कि वो ये समझें कि वो इस भारत के, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक अच्छे नागरिक होने का क्या कर्तव्य है। अगर हमने उन्हें एक अच्छा इंसान बना दिया तो सफलता तो मिल ही जानी है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर सक्सेसफुल होते हैं ये हम नहीं कह सकते। आजकल सफलता के लिए पैमाने बहुत बढ़ गए। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी फील्ड्स हैं कि हमारे पास काम करने को बहुत कुछ है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे डेवलप करना होता है कि उनके अंदर जो भी क्षमताएं हैं उसका पूर्णतः विकास हो और वो सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास भी उनके हर एस्पेक्ट पे हम काम करें। अगर वो अच्छे सिंगर हैं तो वो अच्छी सिंगिंग करें, वो अच्छे डांसर हैं तो अच्छा डांस करें, वो अच्छे राइटर हैं तो अच्छी राइटिंग करें, वो अगर अच्छे स्पीकर हैं तो वो अच्छे स्पीकर बने, वो अच्छे मोटिवेशनल गुरु बने, वो ऐसे मेंटर बने कि वो जाकर के औरों का भविष्य बदले। तो हम यहाँ पर लीडर्स तैयार करते हैं, हम फॉलोअर्स नहीं तैयार करते। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे लीडर्स बने, वो लीड करें। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हर एक परफॉर्मेंस में परफेक्शन था, 0.1 की भी कहीं कोई कमी नहीं थी। अगर अदर इश्यूज को हम छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं कि माइक पीछे से आया, बच्चों ने स्टेज खोलने के समय, इन छोटी छोटी अगर फ्लॉस को हम इग्नोर कर दें तो हमारे बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। एक एक मैसेज जो आपको कन्वे करना चाहते थे सही तरीके से आप तक कन्वे कर पाए हैं। People are living harmony in the nature. The air was clean, the river was pure, and the forest fulfilled the life. But suddenly, a huge change came around, comparing the earth of 90s and earth of 20s. There is a huge difference. I am not explained so well. Let me introduce earth of 90s and earth of 20s. पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। Who is this man coughing around here? Oh, hello, I am the other 20s. This is smartest. You call the smartest with pollution, smoking and harmful gases. Look at me. I am so green for pure atmosphere and around happiness here. You don't believe me? Let me show you. Good morning, sir. Good morning. I hope the forest land is clear for the big contracting that we got yesterday. Yeah, sir, it's done. Oh wow, the work has done faster than next practice, so let's go and visit the site. Sir, you know how much hard work put in this project. I will get perfect now. Visiting the site, boss was really happy about the contract, but he didn't hear about the contribution. You think of progressive? Ha ha ha. It just if you should be now present, now let me your future. Like alive. I
I don't say like this child. I myself help the person, never about the future. Show me try, not over smart, because this smartness there could be your problem. I am so dumb, calling myself smartest. No, you not dumb. The people doing others were dumb. We just have a problem, but we need a solution also. Let us take from Ananya. Good morning everyone. My name is Ananya. Today I am speak on the topic safe environment. The environment gives us everything we need: air to breathe, water to drink and land to live. But today our environment is in danger because of pollution, cutting of trees and too much waste. If we do not take care of the environment, now our future will be full of problems like dirty air and extreme weather. We can save the environment by doing small things like planting more trees, using less plastic, keeping our surroundings clean and saving electricity, water and the earth is our home. It is to protect it, our duty to protect it. Let us all promise to take care of the earth and help make a better place. I would like to invite my friend Sanya. Thank you. Good morning all of you. My name is Sanya Kashyap. I study in class 5th. Today I am going to speak on the topic of pollution. Pollution is a big problem. It affects our life very badly. Mainly there are 3 types of pollution. There are air pollution, water pollution and noise pollution. Air we poised is by smoke, harmful gases and dust. Water is polluted wastage from factories, houses, etc. And the noise pollution is mainly caused by loudspeaker and motor horns. Pollution causes many diseases. We should plant more and more trees and try to control pollution. We must never harm our nature in any way. Now I invite ठाना है, हर कीमत में पर्यावरण बचाना है, हर कीमत में पर्यावरण बचाना है. Thank you. Have a nice day. मे भी फर्स्ट आए. इस तरह की न जाने कितनी प्रतियोगिताएं हैं जो पिछले कई सालों से लगातार हमारे बच्चे जीत रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होइए. जब बच्चे आपके पास आए कि हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, तो प्लीज आप उन्हें सहयोग करें, उन्हें मोटिवेट करें. अगर बच्चा एक पल को पीछे हटता भी है तो उसे सिखाइए कि अगर आप नहीं सीखोगे, ये आपके सीखने का टाइम है. टीचर्स के एफर्ट्स तो काम करते आपको तभी दिखेंगे ना जब आपका हमें सहयोग मिलेगा, आपका बच्चा रेगुलर रहेगा, जब आपका बच्चा लगातार हर चीज में पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो हमें उसके कैलिबर का पता. मेहमान पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून. कि मतलब पानी के बिना, पानी मतलब जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो हमारे मान सम्मान की बात होती है. ना तो मोती बिना पानी के निखर सकता है, ना ही मनुष्य अपने मान सम्मान को खो करके रह सकता है, ना ही चूना बिना पानी के सरवाइव कर सकता है. तो वो उस समय इस बात का आभास कर लिए थे कि पानी की इम्पोर्टेंस कितनी है, जल बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये पर्यावरण बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है. और हम इसकी एक नई शुरुआत यहीं से करेंगे. हम चाहेंगे कि आप मानसिक तौर पर एक संकल्प लेके जाएं यहाँ से कि हमारे बच्चों ने इस सब्जेक्ट पे, इस मैटर पे एक सोशल इशू उठाया है, तो हमें इसमें अपना सहयोग बच्चे को देना है. आप मनी मन प्रण लीजिए कि हम अपने जन्मदिन पर या अपने बच्चे के बर्थडे पर या अपनी एनिवर्सरी पर या किसी भी खास मौके पर हम एक पौधा ही न पेड़ लगा पाएँ. अगर आपके लिए नहीं पॉसिबल है, नहीं आप समर्थ हैं कि आप पेड़ लगाएं, तो आप कोई छोटा सा पौधा ही लगाएं. वो जब ग्रो करेगा, फूल पत्ती बढ़ेगी उसमें, तो उसकी खुशबू और उसका खिलतापन देख करके, उसको खिलता हुआ देख करके आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो वैसे मिलेगी जैसे एक मदर को अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखकर मिलती है. Ecosystem. 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 N for natural. 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 V for valuable things. VALUEABLE. Valuable. THINGS. Things. Valuable things. For important.
IMPORTANT. Important. R for roll. ROLE. Roll. O for ozone layer. OZONE. Ozone. LAYER. Layer. Ozone layer. N for NOURISH. M for moral duty. MORAL. Moral. DUTY. Duty. Moral duty. E for enhance. 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 N for natural resource. NATURAL. Natural. RESOURCE. Natural resource. T for treatment. 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 And water, plant and animals. Thank you. सबसे पहले आए हुए सभी जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हम थैंक यू बोलेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और सबसे अच्छा ये लगा कि सारे लोगों को मौका मिला, और इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा सबसे पहले तृप्ति मैम को, जिनके दिशा निर्देश में सारे कार्यक्रम होते हैं, प्लस सभी अध्यापिकाओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी कराई और उसमें अपना सहभागिता दी और बच्चों को सही दिशा दी। इसके लिए हम सभी टीचर्स को बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलेंगे। टीचर्स को हम थैंक यू बोलेंगे, कितना अच्छी तरीके से उन्होंने सभी लोग को एक ही माले में पिरो के आपके सामने कितना प्यारा कार्यक्रम प्रोड्यूस किया। इसके लिए मैं सभी अध्यापकों को दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। तृप्ति मैम के एक विचारधारा से सब चीजें होती है, वो इस समय यहाँ नहीं, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, जो वो एक सही दिशा, उनके पास इतनी अच्छी प्यारी टीम है जिससे वो सभी कार्य को अच्छी तरह कराती हैं। सभी पेरेंट्स को कि आपके बच्चे थे और बहुत अच्छे बच्चों ने कार्य किए। इसके लिए हम ये महत्वपूर्ण नहीं है कि टॉपिक एनवायरनमेंट था या टॉपिक कोई और था, महत्वपूर्ण ये था कि वो एक ग्रुप में, एक पूरे समाज में, पूरे समूह में उन्होंने कैसे सीखा, क्या उन्होंने गेन किया। स्कूल का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को किताबी ज्ञान दे दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स पढ़ा दिया सब, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कैसे एक समूह में उठना है, बैठना है, कैसे एक के बाद एक आना है, और कितने छोटे बच्चे कितना प्योर फ्लुएंट इंग्लिश बोले। आपने खुद देखा होगा अपनी आंखों से, कितना अच्छा सब इंग्लिश बोले, वर्ड टू वर्ड बोले, कितना साफ सही एक्सेंट था, बहुत अच्छी बात है। वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी आप लोग मत जाइएगा, अभी अनीता मैम सभी कुछ गार्जियंस को बुला के उनका फीडबैक लेती हैं और आप लोग को अच्छी बातें बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मैम के मॉरल सपोर्ट की वजह से ही हम उसे कंडक्ट करा पाते हैं, नहीं तो शायद हमारे लिए कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग है, किसी के घर से हमें सहयोग मिल रहा है, कोई बच्चा ऐसा है जो एट ए टाइम बीमार हो गया, कुछ ऐसा मौसम की वजह से कह लें, या कह लें कि कुछ सीजनल इफेक्ट की वजह से, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी कभी कभी चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, हम पे प्रभाव पड़ता है और हम थोड़े टाइम के लिए अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, हमें लगता है हम बैकफुट हो जाएं क्या। पर उस समय मैम हमारा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी हो जाती हैं और हमें ऑक्सीजन ऐसे लेवल की देती हैं कि पूरे एनर्जी के साथ सारे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से निपटाते हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि मैम के लिए जोरदार शानदार तरीके से तालियां हो जाए। मैम वी लव यू। शायद ये सभी के मन में हम लोग कह नहीं पाते हैं, पर मैम का बहुत आभार है कि हमारी हर चीज़ को मैम सुनते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे मोटिवेट करें कि हमारे स्टाफ को और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएँ, हर एक बच्चे के अंदर वो गुण हम डेवलप कर पाएँ जो चाहता है एक टीचर, एक स्टाफ, एक मैनेजर की हमेशा हमारे बच्चे सबसे अच्छे निकले। मैं पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मैम आप लोग आएँ, और जो भी आपने फील किया हो यहाँ पर, आपको कुछ ऐसा नहीं कि स्पीच देने आना है या वो बोल रहे थे तो हमें, आप जो जैसा भी फील करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी सीट से बोल सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं तो फ्रंट पे आकर के बोल सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आपके मन में जो भी चल रहा है वो हमारे साथ साझा करें मैम प्लीज़। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा, टीचर्स ने बहुत अच्छा कराया, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अनीता मैम को, बस आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बोला है, बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ आ जाके कि हमारे बच्चे यहाँ से इस स्कूल से, AVM से कुछ करके और आगे बढ़ के जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद।
मेरा बेटा बहुत मतलब शांत रहता, घर पे तो शैतानी करता मगर यहाँ स्कूल में बहुत वो शांति से रहता है। इतना अच्छा सा प्रोग्राम कर रहा था। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा हुआ। इसकी मदद आयुष शुक्ला की, और मतलब आप भी बहुत अच्छा मतलब फीस दी हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। मेरे बेटे ने परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जब टीचर ने प्रकृति के बारे में समझाया है, बच्चों के थ्रू हमें सिखाया है, बहुत बेस्ट था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। मासी है, मुझे इनका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। मैम का मुझे जितना उन्होंने बोला समझाया बहुत अच्छा लगा, और पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू अर्श की तरफ से भी। अर्श के टीचर सितारे बने, सूरज बने, वो बुझने वाले नहीं, वो चमकाने वाले बने, वो औरों को प्रकाश देने वाले बने, और हमारे विद्यालय का नाम, आपका नाम, इस देश का नाम ऊपर करें। कि हम संकल्प लें, हम विचार करें। तो हमने प्लान किया कि हम क्यों ना इसकी शुरुआत अपने विद्यालय से ही करें। तो विद्यालय की ओर से एक सुंदर सी परंपरा कि आपको यहाँ एक पौधा, एक सोच ट्रांसफर की जा रही है, एक खुशबू ट्रांसफर की जा रही है, जिसको आप लगाएं और इस पूरी दुनिया में, इस पूरे विश्व में, ना कि सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में बिखेरें। आप अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें, वो एक ऐसा पेड़ बने, ऐसा सुंदर पेड़ बने कि जिसकी खुशबू, जिसकी छाया सबको मिलती रहे, जिसकी शीतल हवा में कोई आए तो वो अपने आप को ठंडा महसूस करे। हमारे लिए ये कुछ ना कुछ जी कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।